دریا کی بے رحم موجوں نے نورالدین کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیا۔ کوئی غوطہ خور انہیں ڈھونڈ نہ پایا، لیکن سلطان نورالدین معجزاتی طور پر زندہ واپس لوٹ آئے۔ ان کی واپسی سے دشمنوں کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑنے لگی، لیکن بادشاہیت کی دیوانی وکٹوریہ نے نورالدین کو مرحوم سمجھ لیا اور دمشق پر حملہ کر دیا۔ سلطان نورالدین مدینہ سے اہم مقدس فریضے کی ادائیگی کے بعد واپس دمشق آ رہے تھے کہ ابراہم کے جاسوسوں نے گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ صلاح الدین اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نورالدین کو صلیبیوں کی قید سے آزاد کرانے یروشلم پہنچ جاتے ہیں۔ ملک مودود ابراہم کو تابوت دے دیتا ہے۔ ابراہم ملک مودود اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ ملک مودود اور کچھ سپاہی بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں۔ صلاح الدین ہی انہیں ڈھونڈ کر شفا خانے بھیجتے ہیں۔ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے بعد ابراہم سب کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ گریگول نورالدین کی گردن اڑانے ہی والا تھا کہ ملا عمر کا جاسوس موسیٰ ایک آتشی دھماکہ کر دیتا ہے۔ نورالدین محل سے تو نکل آتے ہیں، مگر گریگول کے تیروں کا نشانہ بن کر دریا میں جا گرتے ہیں۔ صلاح الدین بھی زخمی تھے، مگر اپنے محسن کو بچانے دریا میں کود پڑتے ہیں۔ عصمت خاتون بھی ان کی تلاش میں دریا تک پہنچ جاتی ہے۔ دریا کے کنارے تیر اور خون دیکھ کر اس کی چھٹی حس کہتی ہے، یہ خون نورالدین کا ہے۔ وہ اپنی فوج کو حکم دیتی ہے، ہر طرف پھیل جاؤ۔ صلاح الدین اور نورالدین کا کوئی بھی سراغ تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ صلاح الدین دریا سے نکل آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بتا میرے سلطان کہاں ہیں۔ موسیٰ کو ہدایت کرتے ہیں، تم جاؤ میرے ساتھیوں کو اطلاع دو، میں جنگل میں ہوں اور تم صلیبیوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم میں تمہاری ضرورت پھر پڑے گی۔ محل میں خبر پہنچتی ہے، سلطان کو 3 تیر لگے اور وہ زخمی ہو کر دریا میں گر پڑے۔ مودود فوج لے کر انہیں ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ صلاح الدین کو دریا کے کنارے کچھ نشانات اور تیر ملتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں سلطان زندہ ہیں اور جنگل میں ہیں۔ صلیبی فوج صلاح الدین کے تعاقب میں ہے۔ صلاح الدین زخمی ہیں، بالکل تنہا۔ موسیٰ ان کے ساتھیوں کو اطلاع دے دیتا ہے، صلاح الدین شمالی طرف جنگل میں ہیں۔ کاراتگن بھی جنگل میں صلاح الدین سے آ ملتا ہے۔ سرحدی غازی بھی آ جاتے ہیں۔ قدم قدم پر صلیبی فوج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادھر مودود کو دریا سے نورالدین کا عبایا جس پر خون لگا تھا مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، میں اپنے بھائی کا انتقام لوں گا۔ عصمت خاتون کے سپاہیوں نے ڈھونڈا، صلیبی فوجیوں نے ڈھونڈا، کاراتگن نے تلاش کیا، مگر نورالدین کہیں نہ ملے۔ مودود نورالدین کا عبایا لے کر محل واپس لوٹا اور بتایا، نورالدین کی لاش بہہ گئی ہے، دیوان بلایا جائے، میں تخت سنبھالوں گا۔ نورالدین کی بیوی اور وزیر اصفہانی اور شیرکو مداخلت کرتے ہیں۔ ان کا مطالبہ تھا، جب تک ڈیڈ باڈی نہ دیکھ لیں تب تک سلطان کی شہادت کا یقین نہ کریں گے اور نہ آپ کو سلطان تسلیم کریں گے۔ مودود تخت سنبھال لیتا ہے۔ ادھر یروشلم میں فتح کا جشن منایا جاتا ہے۔ نورالدین مر گیا ہے، صلاح الدین لاپتہ ہے، اب مسلمانوں کی تباہی یقینی ہے۔ وہ اس بات پر جشن مناتے ہیں۔ ابراہم کہتا ہے، شام پر حملے کی تیاری کریں۔ ملک مودود نہ صرف تخت سنبھال لیتا ہے بلکہ مالکہ کو بھی محل سے نکال دیتا ہے۔ صلاح الدین انہیں مشورہ دیتے ہیں، آپ عصمت خاتون کے قبیلے چلی جائیں، صرف وہی آپ کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ وہ وہاں جانے سے انکار کر دیتی ہیں، لیکن صلاح الدین سمجھاتے ہیں اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ادھر کاراتگن نے توران شاہ کو قید کر رکھا تھا۔ وہ نورالدین زنگی کے انتظار میں تھے، لیکن اب تو سلطان نہیں رہے۔ توران شاہ اپنے بابا نجم الدین سے کہتا ہے، آپ قبیلے والوں کو جمع کریں، میں یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچتا ہوں، پھر کاراتگن کو یہیں دفن کر دوں گا۔ توران شاہ جیلر کو اپنے پاس بلا کر اس کا گلا دباتا ہے اور اس کی جیب سے چابی نکال کر جیل کا دروازہ کھول کر باہر آ جاتا ہے۔ کاراتگن کو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیتا ہے، اپنا قبیلہ بھی آزاد کرا لیتا ہے۔ ادھر ملک مودود عوام کو اکٹھا کرتا ہے، انہیں سونے کے سکوں کے تحائف دیتا ہے اور تمام غلاموں کو آزاد کرا دیتا ہے۔ تمام مساجد میں سلطان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ ملا عمر کے جاسوس بتاتے ہیں، نورالدین کو جنگل سے شہزادہ امارک کے لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ صلاح الدین جنگل کا چپا چپا چھان مارتے ہیں، انہیں سلطان کے خون کے نشانات تو ملتے ہیں اور ایک خفیہ عدد بھی ملتا ہے جسے صرف صلاح الدین ہی سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب تھا شہزادہ امارک۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہزادہ امارک کے نشانات کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں۔
मालिका शेरकू को कहती है, मादूद के मुखालिफ फौजियों को इकट्ठा करो, मैं जंग करूंगी, मगर शेरकू मना कर देता है। ग्रेगुल भी सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन की तलाश में था। वो भी उसी रास्ते पर सुराग लगाता पहुंच जाता है जहां नूरुद्दीन थे। सलाहुद्दीन भी पहुंच जाते हैं। शहजादा अमारक के आदमी नूरुद्दीन को एक मसीही सराय में ले जाते हैं। सराय के मालिक को अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं और कहते हैं, कमरा तैयार करो, अगर कोई मुसलमान आए तो फ़ौरन इतला दो। सलाहुद्दीन और उनके 3 साथी मसीही ताजरों के लिबास में आते हैं जो उन्होंने गुजरे हुए ताजरों से ख़रीदे थे। खाने का ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कुछ देर आराम भी करेंगे, बहुत दूर से आए हैं। सराय के मालिक को शक हो जाता है। वो अमारक के आदमियों को इतला देता है, कुछ लोग आए हैं जो हुलिये से मसीही ताजर लगते हैं, मगर उनकी हरकतें मशकूक हैं। वो सिपाही नीचे डाइनिंग हॉल में उन्हें देखने आता है। इधर सलाहुद्दीन भी किसी सिपाही के मुंतज़िर थे ताकि मालूम हो सके सराय खाना की किस मंजिल पर कौन से कमरे में सुल्तान को रखा गया है। वो सिपाही चाल चलता है और कहता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नूरुद्दीन जंगी मर गया है। इस खुशी में आज सबको खाना मेरी तरफ से मुफ्त। सब खुश हो जाते हैं सिवाय सलाहुद्दीन और उनके साथियों के। वो समझ जाता है और ललकारता है, तुम लोग मुसलमान हो, और हमला कर देता है। इतने में ग्रेगोल भी आ जाता है। सराय के मालिक अलमारक के सिपाहियों और ग्रेगोल में लड़ाई जारी थी। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन तक पहुंच जाते हैं। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन को लेकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सरहदी गाजी सराय के बाहर घोड़ों पर मुंतज़िर थे। सलाहुद्दीन की तमाम मार्कों में ये हिकमत अमली रही कि एक टीम को साथ रखते और एक टीम को बैकअप पर रखते थे। सलाहुद्दीन सही सलामत नूरुद्दीन को ले आए। सलीबी फ़ौज दमिश्क पर हमले की तैयारी में थी। मादूद ने सलीबी फ़ौज का मुकाबला करने की बजाय बोरू कबीले पर हमला कर दिया। ख़तरा टला नहीं। नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अकेले थे। जब वो वापस आ रहे थे तो सलीबियों की एक भारी नफरी विक्टोरिया की क़ियादत में दमिश्क पर हमला करने वाली थी। दोनों बाप बेटा सलीबियों के घेरे में थे। मुल्ला उमर अपने जासूसों के ज़रिए अब्राहम को कैदी बनाकर ले आते हैं। मुल्ला उमर कहते हैं, ये जंग रोक दो वरना अब्राहम को कत्ल कर देंगे। विक्टोरिया कहती है, नहीं, हम दमिश्क को छीन कर रहेंगे। अब्राहम कहता है, मलका, अगर मैं कत्ल हो गया तो मेरी ताकत, मेरे खजाने कुछ ना रहेगा। तुम्हारी मदद के लिए और आपका भाई शहजादा अमारक यरूशलेम पर कब्ज़ा करने आएगा। विक्टोरिया जंग रोक देती है, साथ धमकी भी देती है, मैं दोबारा आऊँगी। उधर मादूद बोरू कबीले पर हमला करता है। मालिका और फौजियों को कैदी बनाकर ले आता है। इस्मत खातून किसी को किसी पर तलवार नहीं उठाने देती। मादूद मालिका को जलावतन करने का हुक्म देता है। वो हुक्म देता है कि वज़ीर असफ़हानी, शेरकू और अमाद को सज़ाए मौत दी जाए और हुक्म देता है उनकी गर्दनें काट दो। मालिका मना करती है, उनको सज़ाए मौत ना होगी। उधर सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन विक्टोरिया के साथ जंग ख़त्म करते हैं। नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नूरुद्दीन कहते हैं, जो रियासत में पीछे हैं, मेरी बीवी, मेरा भाई, उन्होंने ताजो तख्त के लिए रियासत को नुकसान पहुंचाया। मुल्ला उमर फरमाते हैं, मुसीबत में भी राज छुपे होते हैं। इससे साबित हुआ आपकी मौजूदगी कितनी ज़रूरी है। जुल्म हुआ तो आपका इंसाफ याद आया, गफलत हुई तो आपकी ज़हानत, कानून टूटा तो इरादा, इंतशार हुआ तो सुल्तान की ताकत याद आई। नूरुद्दीन कहते हैं, अब वक़्त आ गया है, अपना कहर भी दिखाया जाए। एक दुश्मन से हिसाब बराबर किया है, अब महल में दूसरे दुश्मन से हिसाब लिया जाएगा। नूरुद्दीन सलाहुद्दीन से कहते हैं, तुम गज़ा पर हमले की तैयारियां करो और मैं महल जाता हूँ। अब्राहम को कैदी बनाने वाला मुल्ला उमर का जासूस मूसा था, जिसे सलाहुद्दीन ने अपना सरहदी गाजी बना लिया और फरमाया, तुमने आज अजीम काम सर अंजाम दिया है। विक्टोरिया और इब्राहिम के दरमियान कशीदगी पैदा हो जाती है। विक्टोरिया कहती है, तुम्हारी वजह से आज मैं दमिश्क फतह ना कर सकी। अब्राहम कहता है, तुम्हारे पास सारी ताकत मेरी दी हुई है, तुमने मेरी ज़िंदगी के बारे में एक लम्हा भर ना सोचा। जंगियों को कैसे मिटाना है ये मैं बताऊँगा। जब नूरुद्दीन महल पहुंचते हैं तो ऐन उस वक़्त मादूद, अमाद, शेरकू और असफ़ानी का सर काटने वाला था कि नूरुद्दीन आ जाते हैं। फरमाते हैं, रुको, और आते ही गुस्से से मादूद के चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं और फरमाते हैं, तख्त की हवस ने तुम्हें पागल कर दिया है, तुम हक को बातल में फ़र्क ना कर सके। मादूद के चेहरे पर थप्पड़ सबके सामने मारा गया था। मादूद इसको अपनी इंसल्ट समझते हुए अस्कलान चला जाता है और फैसला करता है कि वो नूरुद्दीन से अलग अपनी रियासत बनाएगा।
फिर नूरुद्दीन अपनी बीवी मालिका को हुक्म देते हैं कि वो अपने आप को कमरे तक महदूद रखे और मेरे सामने ना आए। फिर इस्मत खातून का शुक्रिया अदा करने उनके कबीले चले जाते हैं और कहते हैं इस्मत खातून से कि मैं गज़ा पर हमला करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ गज़ा पर हमले वाले दिन हम शादी कर लें ताकि दुश्मन ये समझें हम शादी की खुशियाँ मना रहे हैं और हम गज़ा पर हमला कर दें। इस्मत कहती है तुमने जंग के लिए बेहतरीन वक़्त का इंतखाब किया, मैं शादी की तैयारियां करती हूँ, तुम जंग की तैयारियां करो। सलाहुद्दीन जब कबीले आती हैं तो तुरान शाह बदतमीज़ी करता है। वो कहता है अब तुम अकेले फ़ैसले नहीं करोगे, अब मेरा भी हुक्म चलेगा, मेरी हाकमियत कबूल कर लो या तलवार से फ़ैसला कर लो। मैंने कबीले को आज़ाद कराया है, तुमने खामोशी इख्तियार की है। दोनों भाइयों में चपकलश शुरू हो जाती है। उधर कारातिगन मादूद से लड़ने जाता है कि तुमने वादा खिलाफ़ी की और मेरे कबीले पर हमला किया। मादूद कारातिगन से कहता है तुम्हारी और मेरी फ़ौज मिलकर एक ताकत बनेगी, हमारे अपने कानून होंगे, हमारी अपनी रियासत होगी, ये कभी गज़ा ना हासिल कर पाएंगे। मेरे पास नूरुद्दीन के बराबर की फ़ौज है और बराबर का ख़जाना भी। अब्राहम यहूदी फ़ौज बुलाता है और कहता है मुसलमान गज़ा पर हमला करेंगे, हम दमिश्क पर हमला करेंगे। यहूदी जंगजू शाम के करीब पहुंचते हैं, सरहदी गाजी उन्हें देख लेते हैं। अब्राहम को खबर मिलती है यहूदी जंगजू पहुंच चुके हैं। अब्राहम कहता है हिफाजत से ताबूत सकीना को वहां ले जाओ, हम ताबूत सकीना की मदद से दमिश्क पर हमला करेंगे। सलाहुद्दीन मंसूबा बनाते हैं ताबूत सकीना को रास्ते में तबाह कर दिया जाए। दूसरी तरफ ग्रेगुल और विक्टोरिया को जासूस खबर देते हैं अब्राहम यहूदी जंगजू के ज़रिए दमिश्क पर हमला कर रहा है। वो मंसूबा बनाते हैं ताबूत चोरी कर लिया जाए, इस तरह अब्राहम और उसका ख़जाना दोनों हमारे कब्ज़े में आ जाएंगे। ग्रेगुल अब्राहम के साथी मुहाफ़िज़ों को ज़ख्मी करके और कत्ल करके ताबूत ले जाता है। जब अब्राहम ताबूत लेने आता है तो देखता है कि पहरेदार कत्ल हो चुके हैं, एक जिंदा था। उसने बताया कि ग्रेगुल ताबूत ले गया है। वो ग्रेगुल को कत्ल करने का हुक्म देता है। ग्रेगुल महल से ताबूत लेकर निकलता है। सरहदी गाजी हमला कर देते हैं। सलाहुद्दीन के बहुत से वफादार साथी शहीद हो जाते हैं। शाम को गज़ा पर हमला करना था, दूसरी तरफ दमिश्क ख़तरे में था और ऊपर से साथियों की शहादत। सलाहुद्दीन के लिए बहुत परेशानियां थी मगर वो डटे रहे हक पर। उधर अब्राहम विक्टोरिया के पास जाकर कहता है ग्रेगुल ने ऐसा क्यों किया, ताबूत को क्यों चुराया। अब मैं ग्रेगुल की जगह खूनी बर्नार्ड को लेकर आऊँगा। खूनी बर्नार्ड का नाम सुनकर विक्टोरिया कांप उठती है। ग्रेगुल ताबूत लेकर जाता है। रास्ते में सलाहुद्दीन अपनी फ़ौज के साथ उसे आड़े हाथों लेते हैं। सरहदी फ़ौज और सलीबी फ़ौज की होलनाक जंग होती है। सलाहुद्दीन फरमाते हैं जो तलवार अल्लाह के लिए उठती है 20 तलवारों पर भारी होती है, उसकी धार को जुर्रत का जज्बा तेज़ करता है। ग्रेगुल और उसके तमाम साथी कत्ल हो गए। ताबूत सकीना सलाहुद्दीन के कब्ज़े में आ गया। यहूदी जंगजू और काहन दमिश्क पर हमला करने के लिए तैयार थे। उनकी शर्त थी ताबूत सकीना को सामने रखकर अब्राहम के साथ वफादारी का हल्फ लेंगे, मगर ताबूत सकीना तो सलाहुद्दीन के पास था। सलाहुद्दीन एक नकली ताबूत सकीना बनवाते हैं, उसमें बारूद भर देते हैं और असली ताबूत को मुल्ला उमर को भेज देते हैं। सलाहुद्दीन के साथी नकली ताबूत सकीना लेकर उस तरफ निकलते हैं जहां यहूदी जंगजू इकट्ठे हो रहे थे। उन्होंने हिफाजती ज़िर्राबी पहन रखी थी। अब्राहम के साथी ताबूत को देखकर सलाहुद्दीन के साथियों पर तीर बरसाते हैं और ताबूत लेकर भाग जाते हैं। अब्राहम और काहन जंगजू ताबूत को देखकर बहुत खुश होते हैं। सलाहुद्दीन के हुक्म पर आज से तीर चलाकर ताबूत को निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। काहन और फौजी अब्राहम को बुरा भला कहते हुए वापस अपने वतन रवाना हो जाते हैं। अब्राहम हुक्म देता है ग्रेगुल को कत्ल कर दो, उसकी बूटियां करके कुत्तों को डाल दो। ग्रेगुल को तो सलाहुद्दीन पहले ही मार चुके थे। विक्टोरिया सदमे से चकनाचूर थी। फिर एंट्री होती है बर्नार्ड की। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ये बर्नार्ड क्या था, ये क्या करेगा, सलाहुद्दीन उससे कैसे निपटेंगे, क्या वो गज़ा हासिल कर पाएंगे। ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।